جی السلام علیکم. کیسے آپ کون صاحب؟ میں صاحب بالکل ایک اننون شخص بول رہا ہوں جو سے؟ آپ کی اکثر میں کلام سنتا ہوں، آپ کی گفتگو سنتا ہوں اور بڑا متاثر ہوتا ہے میرا دل آپ سے. اچھا، ماشاءاللہ آپ کے لفظوں میں بڑی روحانیت برستی ہے اور جیسے آپ ان ملاؤں کو ادھیڑتے ہیں، ہاں کیا کہنا صاحب. اللہ کرم آپ فرمائے، کی ولایت نظر آتی ہے آپ کے. اللہ عطا فرمائے. کیا بات ہے صاحب. مقصد یہی ہے کہ بس فرقوں سے اوپر اٹھ کے بڑی نظر رکھو. انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں، بس انڈیا میں ہی نظر رکھنا. تو بس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے. میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کروں. ماشاء اللہ صاحب، شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس کا شکریہ، بہت بہت شکریہ صاحب. اور آپ کو میرا فون لگ گیا، واپس آ گیا. میں نے آپ کو کہاں سے بول رہے ہیں ابھی آپ؟ میں ایک قصبہ ہے بلاسپور رامپور میں. بلاسپور میں آیا ہوں تقریر کرنے. کچنال ہے نا، کچنال؟ ارے کچرال تو میرا گھر ہے صاحب. تو یہی تو میں نے تقریر کی کچنال میں، مسجد میں. اچھا آپ کہاں سے ہیں صاحب؟ میں ایم پی مدھیہ پردیش، سرون ضلع ودیشا. ہاں جی، سرون ضلع ودیشا ایم پی کا رہنے والا ہوں. اچھا ضلع ودیشا ایم پی کے رہنے والے. تو یہاں تو آپ اپنی تقریر میں آپ ہمیشہ سوار، بلاسپور، رامپور کا نام لیتے ہیں. نہیں، کچنال کر چکا آج سے 15 سال پہلے لگ بھگ. اچھا وہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے نا، وہ کھانا بھی کھائے تھے، نام یاد نہیں آ رہا ان کا، جن کا آپریشن ہوا ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب ہے کوئی. ہاں محبوب ہے، ڈاکٹر محبوب. یہاں تو وہیں کھانا کھایا تھا. تو وہیں کچنال میں میری تقریر مسجد میں ہی ہوئی تھی. باہر وہ جو شہر ہے نا، جی تو وہاں کے کوئی ایک سنا ہے کہ عالم جامع گھر پڑھ کے بھی آئے ہیں. جی تو بہت اچھا ہوا. کچنال میں ہی ہیں آپ خاص؟ نہیں، آپ جس طرح سے سنیت کو ڈیفائن کرتے جی وہ اپنے آپ میں، جہاں تک میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں صاحب، ہاں لیکن جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، جو میں جانا ہوں، جی. وہ اپنے آپ میں باعث فخر ہے. اچھا، مجھے بریلی کی سنیتی سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو مسلمان ہی نہیں مانتے رامپور کے لوگوں کو. رامپور کے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں ان کے حساب سے. رامپور کے لوگ، خاص رامپور کے شہر کے لوگ، ہاں جو سولہ کلی ہیں وہ سولہ کلیوں کو مسلمان نہیں مانتے نا. سولہ کلیوں کو مسلمان نہیں مانتے. ان سے پوچھو سولہ کلی کو مسلمان مانتے، منع کر دیں گے کہ نہیں. اور آپ نے جس سنیت کی بات کی اجمیری، ہاں کیا کہنے صاحب. ہاں اجمیر، صحیح بات. جو دوست کو دوست بھی کہے اور دشمنی بھی رکھے، یہ کہاں تک. جو مولا علی کے دشمن ہیں وہ بھی ٹھیک، ان کو بھی رضی اللہ عنہ. جو دوست ہیں ان کو بھی رضی اللہ عنہ. یہ کہاں تک ٹھیک بات ہے؟ ہاں بتائیے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں اور میں بہت دیر تک اندازہ لگایا، تو میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ حد سے ہے. یہ بریلیت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہے. ان کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے. بریلیت تو کچھ الگ ہی مذہب ہو گیا ہے. جی جیسے پیلی بھیت والوں کا الگ ہو گیا نا ایک دھرم. جی الگ ہی مذہب ہو گیا ان کا بھی. ایک طرح سے الگ کر لیا مذہب سے انہوں نے بھی. جی سب سے بڑھیا رامپور کے لوگ لگتے ہیں مجھے بس. جی اسی لیے میں رامپور کا چرچا کرتا ہوں کہ رامپور جیسے مسلمان بنو. رامپور میں پھپھول نہیں پالتے. وہاں پر سنی وہاں پہ سب نیاز فاتحہ بھی ہوتی ہے. مزاروں پہ بھی لوگ جاتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے سب ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اپنا تصویر تو ڈالتے نہیں، لیکن کبھی موقع ملا تو آپ کا دیدار کریں گے. یہ میرا بڑا شوق ہے صاحب. نہیں بالکل صاحب، بالکل کرنا ہوگا کبھی انشاءاللہ. ادھر پروگرام لگا. ہاں ادھر آؤں گا نا، میں رامپور آتا ہوں مراد آباد، تو پھر میں بتا دوں گا آپ کو. اور کچھ پیغام کرا دو نوٹ تو میں چینل پہ ڈلوا دوں گا 2-4 منٹ اور.
जी जी जी। दो टाइम है, जो भी पैगाम आपको बताना हो कौम के लिए, उम्मत के लिए, क्योंकि ये सिलसिले जो चल रहे हैं ना सुन्नी वहाबी, से कोई फायदा नहीं, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। इससे एक दिमाग खराब करने के अलावा ये कैसे साबित हो कि असल मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है, ये कौन कह सकता है? ये अपने आप को दावा करते हैं कि हम ही मोमिन है, हम ही ठीक है, हम ही मुसलमान। सही बात। ये तो मरने के बाद मालूम होगा ना साहब। हमें माशाल्लाह आपकी बात में बड़ी रूहानियत नजर आती है, और जब लताड़ते हैं आप तो माशाल्लाह क्या कहने। अच्छा, क्या बात है, क्या स्टाइल अल्लाह ने बख्शा है आपको। ऐसे अभी मुजाहिद मिल्लत उनका भी फोन आया तो वो भी बहुत खुश थे, ये बरेली के अजीम साहब, बरेली के। जी जी। तो वो भी यही कह रहे थे मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं मौलाना हबीब रजा साहब के पास गया कि नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो कहना वो मेरी वालदा का मसलक पूछने लगे कि वो कौन से मजहब की थी, मुसलमान थी कि नहीं। मतलब बताइए, ये एक मुसलमान नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है तो उससे पूछे कि तुम्हारी वालदा कौन से मजहब की थी, यानी देवबंदन थी कि बरेलवन थी। अब बताओ, औरतें क्या जाने, बेचारी घर में रहती है, वो क्या जाने कि देवबंदी क्या होता है, बरेली क्या होता है। तो वो कह रहा है कि जब से मेरा दिल टूट गया इन लोगों से, जब से उन्हें भी नफरत हो गई बरेली वालों से। है वो बरेली में ही रहते, बरेली में ही जनाब अजीम साहब, बहुत अच्छे नेक आदमी। एक खटीमा से भी फोन आया था, खुर्शीद हकीम साहब हैं, वो भी कह रहे थे मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। वो भी आपके मिजाज के हैं, हमारे आपके मिजाज के हैं। एक रामनगर में टांडा में कभी आपकी मुलाकात हो जाएगी, मैं उनको नंबर दे दूंगा तो मिल लेंगे, कभी आएंगे जब उधर। मुजाहिद मिल्लत जनाब हाजी इकराम साहब, टांडा रामनगर, वेलफेयर अहले बैत के नाम से एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है अहले बैत। अरे क्या बात है साहब। तो वो आपका नंबर मैं दे दूंगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और वो भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं साहब इस मामले में। अकेले अहमद हसन लड़ रहे थे, तारी अहमद हसन। हाँ, वो तो फिर उन्होंने कुछ सहाबा किराम के बारे में जरा कुछ ऐसे बोलना शुरू कर दिया, वो सही नहीं है। सहाबा किराम को अहले बैत को तो मानना ही पड़ेगा। खैर गाली गलौज करते हैं कुछ, ये बातें उनकी गलत हैं। हाँ, वो थोड़ा पटरी से उतरना चाहिए। अहले बैत सहाबा का जिक्र तो वही कुरान में हदीस में है, तो अपन को तो वो तो मर्तबा अहले बैत का ज्यादा, वो तो सबको मालूम है, कुरान शरीफ में है। और इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता बेशक अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें पाक और साफ ही रखे। ये थानवी साहब का तर्जुमा है, और फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा किया है, अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाक और साफ करके खूब सुथरा कर दे। इंशाअल्लाह ताला आपका एक प्रोग्राम अगर जिंदगी बाखैर रही तो जरूर कराऊंगा रामपुर में, आपसे रास्ता रहा। अरे रामपुर में अगर हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। मैं तो रामपुरी सुन्नी हूँ, मैं तो अजमेरी भी सुन्नी हूँ, रामपुरी भी सुन्नी हूँ। मैं ऐसे ही सुन्नी हूँ जैसे रामपुर के मुसलमान है, शहर के लोग। मैं इंशाअल्लाह ताला मौला की यौम वलादत पे ये प्रोग्राम बिल्कुल। हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे तो मैं आता रहता हूँ। जी जी जी। वहीं से मैंने हदीस शरीफ याद करना शुरू किया था। हजरत हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी है ना। जी जी। और ये खोद पे भी आया हूँ मैं, हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे। खोद पे भी आए आप? हाँ, बैरंग शाह साहब का जो मजार है ना। जी जी। मैं तो बहुत गया हूँ मैं हजरत खोद पे, हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह मजार पे। और बिलासपुर में जो सिद्दी मियाँ है, सिद्दी मियाँ, जी 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 जी, वहाँ पर बिलासपुर में भी मौलाना हनीफ साहब की ससुराल तो आपके पास में ही तो है। अरे मौलाना हनीफ साहब आजकल बड़े बीमार हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। ओहो, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। इल्म का पहाड़, इल्म बहुत अच्छा साहब उनका। वो सादा आदमी है, इस तरह के नहीं है फपून फैलाने वाले नहीं। मौलाना हनीफ साहब PhD है साहब, फारसी में उन्होंने PhD किया है। और उनके एक भाई वहाँ पर हैं डूंगरपुर में, हजरत मौलाना कारी रईस साहब, काजी शहर है डूंगरपुर के। बड़ी खुशी हुई साहब, आपका फोन आया तो बड़ी खुशी हुई। इतनी खुशी आपने मुझे वक्त दिया, आप जैसे। अरे मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब आप जैसे लोग अगर मिल जाएंगे तो इनकलाब ही आ जाएगा। ऐसे लोग हों जो साहब किराम को भी माने और अहले बैत को भी माने।
जी जी। हमें ये नहीं सोचना कि अहले बैत की मोहब्बत करना है तो सहाबा किराम की बुराई करना पड़ेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। अहले बैत को सहाबा किराम ने जमाना है। आपका इसमें गिरामी क्या है सर? अतहर हुसैन कादरी, सिरोही जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। अतहर हुसैन कादरी। अच्छा, अतहर हुसैन कादरी। मेरी तकरीर रजा नगर में भी हो चुकी है आपके। जी जी जी। रजा नगर में भी दोनों मामले है ना, एक बार नमाज पढ़ ली होगी देवबंदी की, तो उनसे तौबा करवा रहा हूँ इमाम से, तो इमामों ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे हम तौबा। तो मेरे पास फोन आया तो मैंने ही मना कर दिया कि नहीं कोई तौबा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो फिर सभी काफिर हो जाएंगे, जिसके ऐसे जनाजे पढ़ के काफिर होने लगे तो फिर तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जितने हाजी जा रहे हैं सबके सब इस्लाम से खर्च हो जाए। इनके फतवों से जितने हाजी गए सबके निकाह टूट गए, जिन्होंने नमाज पढ़ी सबके, यानी सबके वहाँ पर इस्लाम खत्म हो गए हैं। ऐसे तो सबके हिसाब निकाह टूट गए और इस्लाम पैसे पूछ डाल दिया मक्का शरीफ मदीना शरीफ में इनके फतवों के हिसाब से। सर आप मकामी तौर पर विदिशा के हैं या कहीं बाहर से गए हो? नहीं, मैं तो मकामी सिरोही जिला विदिशा का ही हूँ। अच्छा, विदिशा में मुसलमान है साहब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारे यहाँ ज्यादा, विदिशा में कम है हमारे यहाँ ज्यादा। कौन से उसमें? सिरोही जिला विदिशा। सिरोंज एक तहसील है, नवाब टोंक के जमाने की तहसील है। जी जी जी। ये जब से ही हमारे यहाँ टोंक नवाब के जमाने से यहाँ हमारे यहाँ सिलसिला भी है, मिला शरीफ में लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। वैसे नहीं पढ़ सकते, वैसे नहीं पढ़ने देते मस्जिदों में। हाँ, अगर मिला शरीफ हो रहा है मस्जिद में तो खड़े होकर आप सलाम पढ़ सकते हो, वैसे अलग से नहीं, फजर बाद जोहर बाद ऐसा ही हम यहाँ पर रिवाज नहीं। तो यहाँ पर भी वैसे सुन्नी है जैसे रामपुर के सुन्नी है ना मुसलमान, ऐसे यहाँ के भी हैं। लेकिन ये फपू नहीं है, ये हशमती और रजी और ये फलाना और ये ढिमाका और फाजिल बरेली को मानने का कोई मतलब नहीं है। हशमती क्या हुआ? हशमती तो ढोल ताजी को जायज बता रहे हैं और एक नया फिरका बना रहे हैं। मतलब ये है कि वो जामे अजहर वाले भी उनके हिसाब से मुसलमान नहीं हो, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में एक भी मुसलमान नहीं वहाँ उनके हिसाब से। मक्का शरीफ में जितने भी है ना सहाबा किराम की औलाद जो रहते हैं, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद कोई भी मुसलमान नहीं है उनके हिसाब से। फतावा रजिया बताएंगे तो फतावा रजिया के हिसाब से मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमान में नहीं मुश्किल हो जाएगा। ये बरेली वालों में से है, अलग है? ये बरेली वालों में एक फिरका और बन गया है, नया फिरका बना है बरेली वालों में से। बरेली में लगभग 12-14 फिरके हो चुके हैं इस वक्त मौजूदा दौर में। जी। एक जाहिदी है नेपाल में, एक जैशी है नेपाल में 2, एक अशरी अजहरी है नागपुर में 4 और एक दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी 6। इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया था ना, वो दावत इस्लामी वाला, उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की, अपना मीलाद नामा पढ़वाया, लब्बे यात्तार के नारे लगवाए, मरहबा इलियास की आमद मरहबा कहलवाया, यानी पूरी वो समझ लो कादियानी की उसने नकल करी। दूसरी तरह से कादियानी ने अलग तरह से यानी दावा किया, इसने अलग तरह से दावा किया। मतलब इसने खुल के दावा नहीं किया, वो पसे पर्दा। गुलाम कादियानी ने भी खुल के कब कहा था कि मैं नबी हूँ, ये कहा कि मैं मसीह मऊद हूँ। तो इसी ने भी, इलियास काजी ने भी पूरी तरह से कोशिश यही की थी कि हमारे बाल को ऐसी दिखाया जाए जैसे अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक को दिखाया जाता है। बाकायदा बांटा गया, इमरान अख्तारी ने इसके बाल को बाकायदा बांटा खुल के, और इसने ये लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ये बैठा हुआ है। सफ़े 31 में अब वो ख्वाब कटवा दिया। एक ख्वाब में लिखा कि जो इसके इज्तिमा में शरीक हुआ, देवबंदी बरेलवी अहलहदीस सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफ़े 27 अब ये कटवा दिया। नहीं मेरे कटवाया क्यों? उसमें से तौबा की नहीं, कलमा पढ़ा नहीं, आज तक न कलमा पढ़े न तौबा करे, बस वो तो आए दिन कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। ये भी मैंने वीडियो देखा कि एक आदमी से कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, तो ये बैठे बैठे कुर्सी पे जवाब दे रहा, कुर्सी पे बैठा और अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा। बताइए आप क्या मैं रामपुर में आ जाऊं, मैं कहूँ आपको बैठिए, मैं कहूँ नहीं बाद में बैठूंगा, खुशखबरी सुनो। आपको क्या मैं कहूँगा, मैं भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा हूँ, तो ख्वाब में हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए और आपको सलाम भेजा है कि कशनाल जाओ तो उनको सलाम पहुंचा देना। तो आप बताओ आपकी खुशी का क्या आलम होगा? तो ये इसको अल्लाह के रसूल सलाम भेजना इलियास काजी को, ये कुर्सी पे तो उड़ भी नहीं रहा है। वो वीडियो मौजूद है आज भी। मेरा नाम आप नोट कर लीजिए, बब्बू मियाँ, बिलासपुर रामपुर। बब्बू मियाँ साहब, बिलासपुर रामपुर। अगर कभी भी वो तशरीफ लाते हैं बेतकल्लुफ, आप मौका दीजिए,
खिदमत का। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 2 शेर सुन लीजिए, फिर मैं बंद करता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। 2 शेर जो हजरत हसनैन मियां नज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हैं, ताजदार अहले सुन्नत हजरत सैयद हसनैन मियां नज़मी। वो कहते हैं, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़र है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़र है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। और एक शेर और, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए, उस गार का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। ये सैयद हसनैन मियां साहब की है नाज शरीफ। फिर कभी मैं आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह पूरी नाज शरीफ। आप तशरीफ लाइए, खिदमत का मौका दीजिए। बड़ा अच्छा, मुझे खुशी हुई कि रामपुर में अभी आप जैसे लोग हैं, और रामपुर के पठान ऐसी होना चाहिए जैसे आप हो किसी की है? और ये घर आप यहाँ मालिको मुख्तियार है। आप बिल्कुल, बस मैं तो एक ही बात देखता हूँ कि कोई के घर में सूद ब्याज वाला मामला ना हो। आजकल आप जानते हैं सूद ब्याज बहुत हो गया है, तो वो मैं जरा मालूम कर लेता हूँ। दूर दूर तक कहीं कोई हमारा ऐसा मामला अरे नहीं। फिर तो बस तो मैं तो एकदम आ जाऊंगा। बस हलाल रोजी देखता हूँ कि रोजी हलाल हो, तो मैं एकदम बगैर कहे फिर तो मैं खाली हमारे हसन और हुसैन है, हम और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप रोजी भी हलाल खाते हैं माशाल्लाह। खेती बाड़ी है यानी आपकी? जी 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 जी, फार्म है, बाग है। बस 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 मैं तो यही चाहता हूँ कि रोजी हलाल वाला हो, क्योंकि वो है और तमाम है प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं आऊंगा, फिर मशवरा करेंगे, फिर उस हिसाब से ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें हर जमात का आदमी रहे हमारी जलसे में। देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, और जमात इस्लामी का भी। उनको बता देंगे आप किसी पे छीटा कसी नहीं करेंगे, टार्चर नहीं करेंगे, सीधा इस्लाम बयान करना है तो करो, नहीं तो जाओ अपने घर। पहले तय कर लेंगे, अगर इस्लाम बयान करना आता है तो बोलो तैयार रहो, और नहीं आता है तो अपने घर में बैठ जाओ। अगर खाली इस्लाम बयान करने आता है तो आओ, 150 साल पहले की किताबों से बयान करो। ये तुम्हारी हमारी किताब नहीं कि तफहीमुल कुरान तुमने लिख दी तफसीर में, उसने तफसीर जिनान लिखवा दी, उसने तफसीर नहीं भी लिखवा दी, उसने फलानी, यानी अपनी अपनी तफसीरें तुमने लिखवा दी। पुरानी तफसीरें लाओ 150 साल पहले ही। अरे भाई 150, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के जमाने की तफसीर लाओ ना। ये रामपुर के ये भी इमाम जनी कैसे हो गया कि हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी का डंका नहीं बजाते, और हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के मज़ार के सामने बरेली वालों का डंका बजाएंगे, लेकिन कभी उर्से आला हज़रत में हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी का डंका नहीं बजता। इस तरह से जैसा ये लोग डंका बजा रहे हैं रामपुर के इमाम लोग, इन्हें शर्म आना चाहिए कि हम हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के शहर में रहते हैं और बरेली वालों का डंका बजा रहे हैं। बरेली वाले तो कभी डंका नहीं बजाते इनका, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी का दादा। हुजूर आला इन्होंने देखिए इस्लाम की 2 चेंजेस समझ लीजिए इस वक्त। हाँ, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, 2 चेंजेस समझ लीजिए इस्लाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं बहुत खुशी हुई आपसे। खानकाहों से निकल के मस्जिद में चला गया। हाँ हाँ हाँ, खानकाहों से निकल के मस्जिद में चला गया। हाँ, और मस्जिदों में इन्होंने कब्जा कर लिया। और क्या बात करी, बहुत ऊंचे दर्जे की बात करी। बस इन्होंने अपने अपने इमाम जमा लिए। बस ये रोटी रोजी खा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई रूहानी नहीं। अरे अब अड्डे वाली मस्जिद पे अच्छी खासी नमाज हो रही थी सवाल में, क्यों तुमने बिला वजह लड़ाई झगड़े करके कब्जा कर लिया? ऐसी वो कर रहे हैं। अगर भोपाल में 3 मस्जिद हैं इन लोगों की, अगर वो चाहे तो पूरे पे एक ही रात में कब्जा कर लेंगे भोपाल में तीनों मस्जिदों में। अगर बिला वजह नमाज पढ़ रहे थे बेचारे, सवाल में पढ़ने देते, जैसे भी हो जो भी हो, नमाज तो पढ़ रहे थे। अल्लाह रसूल को तो मानते ही सब लोग, देवबंदी बरेलवी।
और चारों इमामों को ही मानते हैं देवबंदी लोग, ऐसे थोड़ी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं, फिर क्या है। एक बात और याद रखना, ये बरेलवी कभी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते। नहीं, कभी नहीं। ये इमाम हुसैन को मानते ही नहीं है। इनमें और देवबंदियों में कोई फर्क नहीं है। वो थोड़ा बहुत फर्क है। बहुत से देवबंद वाले तो कह देते हैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, ये तो बरेलवी वाले तो कहते ही नहीं है इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह वाह। वो तो कह देते हैं देवबंद वालों से मैंने कहलवाया इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, वो तो बेचारे कह देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो उनके दिल में तो अजमत। ये बरेली वाला इतना कट्टर होता है कि इससे कहलवाओ तो कभी नहीं कहेगा। वो फाजिल बरेली को रज़ियल्लाहु अन्हु कहेगा, उसकी दलीलें मिलेंगी किताबों में। लेकिन इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी ने कहा, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, बड़े पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनीज़ुत तालिबीन में लिखा, शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अलैहिस्सलाम लिखा। बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम ने, उलमाए किराम ने अलैहिस्सलाम लिखा है, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा। अबू हनीफा ने नहीं लिखा क्या? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबने बड़े बड़े, मैं कहता हूँ ना, चारों अकाबिर जितने भी चारों इमाम शाफी ने तो ये कहा था कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम रिफ्ज़ है तो आज से मैं राज़ी हूँ। कभी मैंने उर्स आला हज़रत में मैं भी गया 10-12 बार, तो मैंने 1 मिनट की तकरीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में सुनी, न इमाम बाकर की शान में सुनी, न इमाम जाफर की शान में सुनी। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं एक हिंदी में बता दूँ आपको जी। ये तो काबा कौसैन बरेली को मान बैठे। अरे क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। बस हर बात में फतावा रख दिया। और आला हजरत ने ये फरमाया, अल्लाह रसूल का नाम भी नहीं ले रहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अल्लाह ने फरमाया, बस शुरुआत कर रहे हैं आला हजरत ने ये फरमाया। वो मकराने वाला हो तो वो भी यही कह रहा है कि मसलक के आलात की तरवीज इरशाद नहीं, इस्लाम की तबलीग नहीं, बस इनके ही मसलक की हो। और इनके मसलक में कब्र में शैतान आता है बेकाने, जो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि कब्र में शैतान आएगा बेकाने। और भी बहुत सारी बातें जो इन्होंने लिखी हैं। इनको जामिया घर वाले नहीं मानते, बरेली वालों को, रामपुर के उलमा नहीं मानते, और ये क्या कहते हैं फिरंगी महल के उलमा नहीं मानते, हैदराबाद के उलमा नहीं मानते, बदायूं के उलमा नहीं मानते। अगर ये इतने बड़े होते तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में इनका सिक्का चलता। मक्का शरीफ मदीना शरीफ में इनका एक भी इमाम क्यों नहीं है, एक भी मुअज्जिन नहीं है, झाड़ू देने वाला भी नहीं है, साफ सफाई करने वाला भी नहीं, क्यों नहीं है? जब तुम अगर इतने अच्छे होते तो तुम्हारे इमाम क्यों नहीं है वहाँ पर? 100 साल से इनके फतवे से 100 साल से नमाजी नहीं हो रही मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। सबसे बड़े फिरका परस्त ये हैं। अरे बस मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह फिर अपन मिलेंगे, फिर बात करेंगे। इनके वालिद हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं, तफसीर अलम नशा, आप मंगवा लेना है। आने जाने का सारा किराया खर्च आप परवाह ना कीजिए, सब आप तशरीफ लाएं। हम मैं आऊंगा इंशाल्लाह, मैं फिर आपसे सुकून से वहीं रहेंगे, मुलाकात करेंगे। तफसीर अलम नशा एक मंगवा लेना, फाजिल भाई के वालिद की वही तर्जुमा जो देवबंद वाले करते हैं, जिस पर ये लोग कुफ्र के फतवे लगाते थे आज तक। मैंने फिर बताया वीडियो में, देखो इन्ना फताह का फतह मुबीना का तर्जुमा वही किया जो देवबंद वाले करते हैं। हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। वो तो नियत थोड़ी है साहब, नियत तो है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, जाहिरी तर्जुमा है। अब ये लोग जाहिरी तर्जुमे पे ही फतवे लगाते थे पहले जमाने में। 116 तफसीर अलम जिल्द अव्वल में यही तर्जुमा है। सफ़ा 124 बालन फादा का वो जो आए थे उसमें वही तर्जुमा है। तो ये सफ़ा 201 इन्नका मय्यतुन इन्नहुम मय्यतून में वही तर्जुमा है जो देवबंद वाले करते हैं। ये लोग इन तर्जुमों पे भी काफिर बनाते थे। अरे भाई नियत देखी जाती है, हुजूर फरमाते हैं अमाल का दारोमदार नियत पर है। जैसे आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, कभी आपके पास कोई मेहमान आया या आपका भी ऐसा साबका हुआ होगा कि आपके साथी ने किसी ने कहा होगा कि यार मैं मस्जिद में पेशाब करके आता हूँ, ये आपके मुंह से निकल जाएगा कि जाओ मस्जिद में पेशाब कर आओ। तो ये नियत थोड़ी है कि अंदर पेशाब कर आओ, नियत वही है कि पेशाब खाने जो बने वहाँ कर आओ, लेकिन मुंह से वो लफ्ज गलत निकलता है कि जाओ मस्जिद में पेशाब कर आओ, है क्या नहीं साहब? ऐसा आमतौर से होता है। तो हुजूर फरमाते हैं अमाल का दारोमदार नियत पर है। हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगाया उलमा ने, अनल हक उनके मुंह से निकला, तो वो उन्होंने थोड़ी कहा था, वो अल्लाह की आवाज उनके मुंह से निकली थी। तो ये फतवा था ना उलमा ने लगाया, लेकिन आज तक किसी ने नहीं माना, न देवबंद वालों ने, न बरेली वालों ने, सब वली मानते हैं हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई साहब, इंशाल्लाह फिर बात कर लूंगा, मैं इसे चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है साहब? अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे डलवा देता हूँ मैं आपके नाम से, ठीक? जी ठीक, सलाम।